Now I would like to introduce our next speaker, Mr. Abhijit Raut. He has 15 years of experience in the field of empowerment of persons with disabilities. He is founder director of TIME. He is registered rehabilitation professionals with Rehabilitation Council of India, that is RCI New Delhi. He is district election nodal officer of Disability Wing, District Election Department, Nagpur. He's been project coordinator of District Disability Rehabilitation Center, Nagpur. He's been member of Commonwealth Association for Health and Disability, Comhad, UK. He's been member of Apang Kriti Arakhada Committee headed by District Collector. He has many achievements as well, like he has completed various disability-related projects under difficulty and critical conditions and provided the various rehabilitation services. He has conducted national and state level conferences, symposiums, and CRE programs. So his today's topic is government structure for special needs. So I welcome Mr. Abhijit Raut and I would like to hand over to him for the next session. Mr. Abhijit Raut? Yeah. Good morning, everybody, and thanks to give me opportunity for the SYNC organization and especially Harshali madam and whole team also. I'll say in the presentation also. Please help me to share my presentation and support to me. Yes, I 1 minute. Sorry, it's just opening. Okay, good. Just Yes. Clear? I started. Okay. Myself, Abhijit Raut. Harshali madam, I started. Yes, please. Myself, Abhijit Raut. I'm working in rehab professional in last 15 years based in Nagpur. Thanks to all parents, this opportunity to me, and especially this is a national level summit for the special needed parents 2021. My subject is related to government sector, various schemes and any other facility for the and other things also related to government sector. So this is thanks. I'll start next, madam, please. Next presentation, please. Next slide. Government structure for the special needs. इसमें बहुत सी चीजें हैं. I'll talk to you in Hindi. Reason of this, major parents, I'll last presentation also की see the related to Maharashtra and other thing, other state also. So it's the government structure and for the special needs. Next. सबसे पहले तो मुझे बताया गया था ये प्रेजेंटेशन से पहले कि ये एक जर्नी क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में, किस तरह डिसेबिलिटी सेक्टर में अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट ने आगे प्रोग्रेस किया है या जिस तरह से एक्ट है, पॉलिसीज है, उसके ऊपर काम कैसे हुआ है. अभी करंट में तो ये सभी को पता है कि जो बच्चों के लिए 2016 का जो एक्ट आया है वो सभी को अवेयर है. लेकिन उसके पहले एक 1995 का एक्ट था जो शायद बहुत से लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं. लेकिन ये 1995 का एक्ट एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क रहा, एक जर्नी रहा, जहाँ पे लोगों को ये समझ में आ गया कि डिसेबिलिटी सेक्टर है, इसके लिए कुछ स्पेशल राइट्स है और उसके लिए ये 2016 और 1995 के एक्ट के अंदर की बेसिक डिफरेंस है. पहले एक्ट जो था ये एक चैरिटी बेस एक्ट था जो 1995 का एक्ट है और अभी का जो एक्ट है वो राइट बेस है. आप दोनों में एक ध्यान में रखिए, डिफरेंस बहुत छोटा जरूर है लेकिन बहुत इम्पैक्टेबल है. राइट्स है ना, आपके बच्चों के जो राइट्स है या जो भी रिलेटेड टू डिसेबिलिटी सेक्टर के राइट्स है, इसलिए उसका पहला ही नाम राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 रखा है. और पहले जो 1995 का एक्ट था वो इक्वल अपॉर्चुनिटी और आपको अलग अलग सेक्टर में हर चीज को प्रोटेक्ट करना, राइट्स ऑफ एक बच्चों से रिलेटेड या पर्सन विद डिसेबिलिटी रिलेटेड करना. उसके पहले भी एक और नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया था जो 1999 में था,
जो रिलेटेड टू आपके ऑटिज्म में बोलूंगा, नेशनल ट्रस्ट में जो 4 डिसेबिलिटी को एक कंपोज पैकेज है, वो 99 का नेशनल ट्रस्ट एक्ट भी हमें समझना पड़ेगा, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे ही बहुत सी चीजें एक स्पेशल करके एक पूरे देश में एक ऐसा एक्ट था जो एक पूरा कंप्लीट एक्ट है, और उसी के पैरेलल लाइन नेशनल ट्रस्ट एक्ट काम कर रहा था, जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, ऑटिज्म बच्चों हो, सेरेब्रल पाल्सी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे। जिस तरह के हम बीइंग अ प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, वो एक रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ एक्ट है जिसे आरसीआई कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी प्रोफेशन को, जैसे मेडिकल लाइन में जाएंगे तो एमसीआई है, हर सेक्टर का एक रिहेबिलिटेशन यानी रिलेटेड टू काउंसिल होता है। जैसे हमारे इसमें रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया है जो 92 में एस्टेब्लिश हुआ था। अभी आपने देखा होगा उसके पहले एक सबसे मेन है, अभी करंटली मेंटल हेल्थ केयर एक्ट निकला है। आप इसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ना बहुत जनों को डिसेबिलिटी एक्ट पता है, पैरेलली गवर्नमेंट ने पहले एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इसमें एक शब्द है, ये भी देखिए, खाली एक्ट है कब है ये समझने की जरूरत नहीं, उसमें केयर बताया गया। केयर का मतलब अलग अलग तरीके से होता है, पहले मेंटल इलनेस की तरह हम इसको देखते थे, अभी मेंटल हेल्थ केयर बताया गया 2017 का जो अभी एक्ट अभी करंटली है। उसके पहले एक बेसिकली मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में था, वो हेल्थ एक्ट था, अभी उसको ही बना के हेल्थ केयर एक्ट कर दिया गया। ये चीजों को भी, कुछ चीजें ना पहले पास्ट में कैसे जर्नी हुआ, ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा, और हम अभी करंटली कहाँ है ये भी समझने पड़ेगा। अभी यूनिसेफ का जो एक्ट था, यूनाइटेड नेशन, एंड जो अलग जिसके बेस पे हमारा अभी जो नया 2016 का एक्ट बना है, उसके बीच में भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ चीजें उनके साथ कोलैबोरेटली की थी, जो एक्ट बनाने के लिए काफी सपोर्टिव रही। और मेन चीज है जो बच्चों का एजुकेशन सब चीजें होती है, जो राइट ऑफ चिल्ड्रन विद, जो हम बताते हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको आरटी बोलते हैं, आरटी एक्ट 2009, काफी चीजें यहाँ पे भी ऑटिज्म सेक्टर में नहीं, लेकिन बाकी पेरेंट्स को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है इंक्लूसिव एंगल से, कि इस तरह से बच्चे रेगुलर स्कूल में जिस तरह मेन स्ट्रीमिंग होना चाहिए, उसके लिए ये एक्ट भी बहुत सपोर्टिव करता है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अभी एक चीज पहले हम एक किस तरह से ये चीजें हुई है 2016 तक के क्या था, एक पहले हम इसको बोलते हैं कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अभी हम बोलते हैं कैसा इसमें एक ड्रास्टिकली चेंज आ गया। हम राइट्स की बात करते हैं, एक अवेयरनेस आ गया, अभी जागरूकता आ गई लोगों में कि पहले चैरिटी मॉडल था, अभी राइट अवेयरनेस की बात होती है। पहले हम एक प्राइमरी जांच यानी उपचार, अर्ली डिक्टेशन पे बात होती थी, अभी इंटरवेंशन पे भी बात होने लगी है। दिस अ गुड साइन, काफी चीजें बदल गई। पहले हम बोलते थे डिक्टेशन होना चाहिए, अर्ली डिक्टेशन क्या था, अलग अलग चीज थी, अभी हम बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफी चीजें ना गवर्नमेंट में और प्रोसेस के साथ बदल गई। कुछ पेरेंट 10 साल पहले हमें मिले थे तो वो बोलते कि शायद वो चीज तब रहती थी तो हम आज बहुत अब हमारे बच्चों को डेवलप कर सकते थे। लेकिन ये बताने का पर्पज है कि ये काफी अच्छा प्रोग्रेसिव है और अच्छी तरह से हम धीरे धीरे जा रहे हैं। इसमें पेरेंट्स का भी रोल कैसे बढ़ता है ये भी मैं आगे बताऊंगा। पहले स्पेशल एजुकेशन था, आपने सुना होगा, पहले एक स्पेशल स्कूल या जनरल एक ग्रुप में बच्चों को पढ़ाया जाता है, अभी इंक्लूजन एजुकेशन की बात होती है। पहले शेल्टर वर्कशॉप होते थे, आज ओपन एम्प्लॉयमेंट की बात होने लगी है। ये काफी चीजें बदल रही है, आप ये चीजों को समझना पड़ेगा। कभी कभी बहुत से पेरेंट्स 10 साल 5 साल पहले जो चीजें सुने रहते हैं वही चीजों को हम कंडीशनिंग माइंड में आगे लेके जाते हैं, या वही चीजों को हम एक फिक्स माइंड की तरह लेके चलते हैं कि अरे यार अभी शेल्टर वर्कशॉप ये कैसा होगा वैसा होगा। अभी भी मैं काफी प्रेजेंटेशन सुना हूँ, इसमें पेरेंट्स का बोलना भी है, शेल्टर वर्कशॉप या जो भी रेसिडेंशियल रिलेटेड है। अभी आपको ना इसकी चीजों को समझना पड़ेगा। अभी ओपन एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इंक्लूजन की बात हो रही है, तो हमें सेग्रीगेशन नहीं करना है, हमें बच्चों को सेपरेटाइजेशन नहीं करना है, हमें समाज के साथ ही रखना है और इंक्लूजन पैरामीटर पे भी काम करना है। इंक्लूजन का मतलब खाली स्कूल नहीं होता है। बहुत से पेरेंट्स हमसे इंटरेक्ट करते तो सर इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। अच्छी स्कूल में पढ़ाने का ही मतलब ये है, रेगुलर स्कूल में उसको मेन स्ट्रीमिंग करने का ही मतलब ये है कि उसको लॉन्ग टर्म कम्युनिटी में इंक्लूजन करना है, ना कि उसको सेपरेट करना है, ना सेग्रीगेट करना है। ये 2-3 चीजों को आप समझ लेंगे तो शायद मुझे लगता है काफी चीजों में अभी परिवर्तन आ चुका है। जो एक प्रोसेस थी, काफी चीजें हम भी देख रहे हैं बीइंग एज अ प्रोफेशनल, कि हम जब स्टार्ट किए थे, जब करियर में शुरुआत की थी तब क्या था और अब कहाँ बातें हो रही है। तो दिस अ गुड साइन, तो ये भी आप पेरेंट्स आप समझ लेंगे। नेक्स्ट। हाँ,
अभी यहाँ पे काफी चीजों को समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी किस तरह से चीजें चेंज हुई है। आपने देखा होगा कि अभी आप बहुत से देखते हैं कि सोशल जस्टिस में हम काम करते हैं, हम बताते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट या हम जो सेक्टर को बिलोंग करते हैं, हमारा जो डिसेबिलिटी सेक्टर है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। ये 98 तक के आपने देखा होगा कि ये पूरा मिनिस्ट्री में एक ही था। बाद में इसको 99 में थोड़ा ट्राइबल डेवलपमेंट एंड डिवीजन में थोड़ा सेपरेटली मिनिस्ट्री हुई है। उसके बाद में 2007 में ना आपने देखा होगा, उसके पहले ये अलग बहुत सी चीजों थी। 98 के बाद सोशल जस्टिस में ये चीजें कन्वर्ट हुई। उसके पहले 99 में भी काफी चीजों का ये क्लियर था। आपको ये चीजें ये सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर दिखेगा। लेकिन अभी करंटली इसमें एक चेंज हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, 2012 में आपने काफी लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, डिसेबिलिटी अफेयर्स एस्टेब्लिश हुआ, जो सोशल जस्टिस का ही पार्ट है। काफी लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स, लेकिन ये 2012 तक के जरूर था। अभी उसका नाम चेंज हो गया, आपने पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि बहुत सारे लोगों को अभी उसको डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कहा जाता है, जिसे दिव्यांगजन, क्योंकि एम्पावरमेंट की बात आने लगी। डिसेबिलिटी एक अफेयरेंस एंड रिलेटेड टू डिपार्टमेंट अलग हो गया, लेकिन उसका नाम चेंज करके अभी अगेन उसको रीनेम किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब आप बोलेंगे इससे क्या होता है, नाम चेंज करने से क्या होता है? नहीं, ये सब कुछ हो रहा है बीइंग एज ए एक्ट बेस्ड। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती है, या कोई भी गवर्नमेंट या जो भी चीजें कोई बनाती है, किसी की इंडिविजुअल किसी के माइंड से नहीं होती है। इसमें एक बहुत सी चीजें एक्ट बेस्ड सपोर्ट रहती है, जो शायद हमें हमारे बच्चों के लॉन्ग टर्म एंगल से काफी सपोर्टिव रहने वाली है। तो शुरुआत नाम से जरूर है, लेकिन उसकी एम्पावरमेंट की बात आएंगी तभी आगे होगी, ना कि उसको पर्सन विद डिसेबिलिटी या दिव्यांग के जगह और कुछ नाम रखा जाएगा तो शायद उससे फर्क नहीं गिरेगा। नेक्स्ट, हाँ, अभी बहुत से लोगों को ये पता है कि नहीं पता नहीं, कुछ चीजें काफी पेरेंट्स पूछते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, हमें कहाँ पे जाना चाहिए, हमें ये हमारे साथ स्कूल के बारे में ये हो रहा है, या जो भी XYZ आपको चीजें सपोर्टिव चाहिए एज अ बीइंग अ लीगल एडवाइस, बीइंग एज अ सपोर्टेड एजुकेशन, रिहैब रिलेटेड, आपके साथ कहीं पे भी कुछ भी गलत अच्छा दोनों चीजें हो गया, आपको सपोर्ट चाहिए, तो हर पूरे देश में जैसा डिसेबिलिटी अफेयरेंस है, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट है, उसी के साथ पूरे देश में चीफ डिसेबिलिटी कमिश्नर होते हैं। एक लाइक एक जज की तरह इनका, एक जस्टिस की तरह इनका रोल होता है। जहां पे आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, शायद आपको चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी इसमें हर चीज आपको सपोर्ट करता है। आपके बच्चे, फैमिली, इवन सिबलिंग, रिलेटेड टू पर्सनल इश्यूज, रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, रिलेटेड एनी अदर इशू, यू कैन डायरेक्टली आप इनसे कांटेक्ट में आ सकते हैं वाया मेलिंग, ईमेल, सभी जैसे से। तो ये हर पूरे देश में एक है। नेक्स्ट, और हर स्टेट में एक डिसेबिलिटी कमिश्नर है आपके लिए, जिसको दिव्यांग कल्याण आयुक्त कार्यालय बोला जाता है। उसका नाम ही है दिव्यांग आयुक्त कार्यालय करके। उसको आप कहीं पे भी गूगल पे भी या जहाँ पे भी सर्च करेंगे तो डिसेबिलिटी कमिश्नर करके डालिए। अभी महाराष्ट्र की बात होती थी, ये सोशल जस्टिस का पूना में है। इनके काफी रोल है। बहुत से पेरेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन, NGO एस्टेब्लिश होती है, तो आपको पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बीइंग एज अ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपकी एक रिहैब ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एज अ एक्ट पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है डिसेबिलिटी कमिश्नर के अंदर, क्योंकि रिहैब में भी काम करना है। जैसे मुझे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो मैं पढ़ा लिखा जरूर, लेकिन जब तक कि मुझे MCI उसकी परवाह यानी सर्टिफिकेशन या उसकी नंबरिंग में देता है, तो मैं प्रोफेशनल करके नहीं सर्टिफाइड होता हूँ। उसी तरह कोई भी डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्ति, किसी को भी ये सेक्टर में काम करना है तो आपको डिसेबिलिटी कमिश्नर क्या रजिस्टर्ड होके उसका एक सेपरेटली पर्टिकुलर 49 सेक्शन में आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, जिसके वजह से कल जाके आप ये प्रोफेशनल में वो पूरा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन ही नहीं है, आपको हर स्टेट में डिसेबिलिटी कमिश्नर का ऑफिस मिलेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में करस्पॉन्डेंट या कुछ नहीं कर सकते तो शायद आप स्टेट के डिसेबिलिटी कमिश्नर के पास जा सकते। काफी स्ट्रक्चराइज है, लेकिन कोशिश करेंगे तो काफी चीजें आपको सपोर्ट मिल सकता है। और पेरेंट्स भी यहाँ से गाइड ले सकते हैं कि बीइंग एज अ एक्ट हमें ये चीजें चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन का पार्ट चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं एज अ डिसेबिलिटी कमिश्नर को कि हमारे बच्चों के लिए आपने क्या क्या किया है, क्या क्या चीजें हो रही है। तो ये डिसेबिलिटी कमिश्नर पहले आंसरेबल रहता है, बाद में नेशनल के डिसेबिलिटी कमिश्नर रहते हैं, बाद में डिसेबिलिटी, वो पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से कि आपने इसके लिए क्या क्या काम किया है या करना चाहिए। आपके पास कुछ अच्छे सजेशन है तो आप डिसेबिलिटी कमिश्नर को भी दे सकते हैं।
ये आपके अधिकार है और ये आप नहीं बोल रहे, आप बच्चों के लिए बोल रहे हैं और ये कोई चैरिटी बेस नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अभी चैरिटी से हम एक अलग राइट्स बेस पे आ रहे हैं, तो इसलिए आपने सोचना जरूरी है। नेक्स्ट। हाँ, मैं एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल आपको जिस तरह से बात कर रहा हूँ, तो मैं बीइंग आरसीआई रजिस्टर्ड हूँ, जिसको भारतीय पुनर्वास परिषद बोलते हैं, जो 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। 93 में उसके अलग तरीके से एस्टेब्लिशमेंट है, जो दिल्ली बेस है। कोई भी डिसेबिलिटी सेक्टर में आपसे कोई गाइड करता है या प्रोफेशनली आपसे बात करता है, पेरेंट्स करके कोई ट्यूटोरियल क्लास लेते हैं, कोई स्कूल में एडमिशन करते हैं, कोई स्पेशल है, कोई शेल्टर हाउस है, कहीं पे भी आपसे बच्चे से रिलेटेड आप कोई किसी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या एजुकेशन पर्पज है, रिहैब पर्पज है, कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, तो आपने वहां जरूर पूछना चाहिए कि आप क्या आरसीआई रजिस्टर्ड लोग है क्या। क्योंकि कुछ चीजें बीइंग अ प्रोफेशनल, काफी चीजें टेक्निकली बोलो, एजुकेशन से रिलेटेड बोलो, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स है, शायद जनरल प्रैक्टिस से भी ज्यादा ये लोगों के पास कुछ एक्सपर्टाइज जरूर होती है। पेरेंट्स कभी पूछते ही नहीं कोई स्कूल में जाने के बाद। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अच्छा स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसलिए अच्छा ट्रीटमेंट होना जरूरी नहीं है। बीइंग अ प्रोफेशनल लोग कितना है और होने के बाद भी वो आरसीआई रजिस्टर्ड है क्या, ये भी आपने पूछना चाहिए। काफी लोग एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं, 10 साल तक की कोई भी देखता नहीं कि रजिस्टर्ड हुए कि नहीं, रिन्यूअल किया कि नहीं। और हम बच्चों को अपडेटेड रखने के लिए अपडेटेड नॉलेज भी किसी के पास चाहिए। मैं एक बार डिग्री लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सभी चीजें अपडेट पता है। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ तो भी सीआरई कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम चलाती है, हर सेक्टर में होता है, हर काउंसिल सेक्टर में होता है। वो अपडेट कितना है ये भी इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ पेरेंट्स आपने भी एक चीजें, इसमें काफी चीजें ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो पेरेंट्स भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। करस्पॉन्डेंट कोर्सेस है, रेगुलर कोर्सेस है। मैं बहुत से पेरेंट्स से बोलता हूँ कि आप जरूर आरसीआई की वेबसाइट पे जाइए, अपने बच्चों से रिलेटेड क्या शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, कौन से मॉड्यूल्स है। हम भी बीइंग एज अ मदर, आपके घर में कोई अच्छे लोग हैं वो भी इसमें करियर कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं स्पेशली, क्योंकि जितना पेरेंट्स उसको कंसर्न करेगा शायद दूसरा रिहैब प्रोफेशनल कर पाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन होता है, प्रोफेशनल भी काम करता है, लेकिन आप उसमें, आपका ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो आपने जरूर आरसीआई की वेबसाइट पे जाके कुछ रिलेटेड रिहैबिलिटेशन कोर्सेस पार्ट टाइम घर पे बैठ के 2 महीने, 6 महीने के, 1 साल के करना चाहिए, और आपने जरूर इस वेबसाइट को जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट। हाँ, अभी ये एक, जैसे मैंने बताया, डिसेबिलिटी अफेयरेंस है, डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक अपना सेपरेट विंग है, डिसेबिलिटी कमिश्नर हो गया, रिहैब काउंसिल हो गया। लेकिन बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं देश में ये सेक्टर की कितनी नेशनल इंस्टीट्यूट है। आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं। आज के करंट स्टेटस के हिसाब से हम 9 अलग अलग तरीके की नेशनल इंस्टीट्यूट है हर स्टेट में। जैसे कोलकाता में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है। तो आपने समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप जो पेरेंट्स को ये पता नहीं होगा कि देश सबसे बड़ी नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, क्या काम करती है, उसके अपडेटेड, क्योंकि वहाँ रिसर्च पेपर होते हैं, वहाँ पे वेल प्रोफेशनल लोग रहते हैं। देश की कोई भी अच्छी योजना या स्कीम है, अलग अलग चीजें कुछ भी रहे, नॉट इन अलग अलग फैसिलिटी, पॉलिसी मेकिंग क्या चल रहा है, हमारे को ये भी देखो। कुछ चीजें मैं बहुत से पेरेंट्स से मिलता हूँ, तो पेरेंट्स को लगता है कि कोई ऐसा एक डोमेन होना चाहिए जहाँ पे हम चीजें सब सिंगल विंडो मिलना चाहिए। देखो, सिंगल विंडो जरूर मिल सकती है, लेकिन सर्चिंग मोड आदमी का कभी भी ऑलवेज नॉलेज बढ़ाता है। आप अलग अलग वेबसाइट पे जाएंगे, अलग अलग कुछ नई चीजें मिलेगी। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप बहुत अलग अलग वेबसाइट सर्च करें, लेकिन ये देश की गवर्नमेंट की 9 अलग अलग नेशनल इंस्टीट्यूट है जो स्पेशली डिसेबिलिटी के लिए काम करती है। जो जैसे मैंने पहला नेशनल इंस्टीट्यूट विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए काम किया, देहरादून बेस है। दूसरा AYJ अलाउद्दीन जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो बांद्रा में, मुंबई में है। और हमारे बच्चों से रिलेटेड निपमैट करके इंस्टीट्यूट है जो चेन्नई, तेलंगाना या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। NIMH है। आपने जरूर ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना चाहिए। मैंने सबको इसमें लिंक भी शेयर किया हूँ, फोन नंबर है, और इस पे काफी बच्चों से रिलेटेड, स्पेशली ऑटिज्म बच्चे के भी बारे में काफी अभी काम पूरे नेशनल इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन निपमैट NIMH में काफी हो रहा है। आप जरूर ये वेबसाइट पे जाइए 3 और 4 नंबर की, और पढ़िए। और आपको ये पता होना इसलिए जरूरी है कि बीइंग अ पेरेंट्स, आपके फ्रेंड सर्कल में भी अदर डिसेबिलिटी के भी पेरेंट्स आ सकते हैं। मैं जरूर ऑटिस्टिक बच्चे का पेरेंट्स हूँ, लेकिन मुझे शायद कोई ब्लाइंड बच्चों के बारे में भी सपोर्ट करने की कम्युनिटी में कौन आपसे कनेक्ट हो जाए। जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर के दोस्त डॉक्टर रहता है, इंजीनियर के दोस्त इंजीनियर रहते हैं, वैसे ही डिसेबिलिटी पेरेंट्स में भी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप डेवलप होता है, क्योंकि हम एक चीज से इंटरेक्ट करते हैं। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम ये अरेंज हुआ है, पेरेंट्स लोगों ने किया है,
लेकिन इसमें ऑटिज्म जरूर हो सकता है, लेकिन कोई शायद पेरेंट्स हेयरिंग इम्पेयर्ड के भी हो, कोई शायद अदर डिसेबिलिटी की भी हो। तो ऐसा ना हो कि खाली स्नीक के पास ऑटिज्म बच्चों की इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके पास ऐसा एक रिसोर्सेज चाहिए जो अलग अलग डिसेबिलिटी को भी कनेक्ट कर दे पाए। तो जरूर ये नेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को पढ़ते जाइए, समझते जाइए, इसमें अपडेटेड हर चीज है, आपको दूसरा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो देश में अच्छी अच्छी पॉलिसी बनती है वही ये डोमेन पे आपको मिलेगी। नेक्स्ट। हाँ, अभी जैसे मैंने पहले बताया, डिसेबिलिटी अफेयर्स हो गया, डिसेबिलिटी कमिश्नर हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट होगी, आरसीआ हो गया। इसका एक रीजनल वाइज अभी करंटली पूरे ऑल ओवर कंट्री में 16 अलग अलग सीआरसी है, जिसको हम कंपोजिट रीजनल बोलते हैं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट के रीजनल सेंटर, काफी नेशनल इंस्टीट्यूट तक लोग, जैसे अभी निपमैट चेन्नई में है, लेकिन चेन्नई में निपमैट में जो हो रहा है तो महाराष्ट्र के पास क्या आ रहा है, तो उसका सीआरसी महाराष्ट्र में है, यानी रीजनल सेंटर है। तो ये रीजनल सेंटर को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इज लाइक अ सेमी, एक बिग बाजार का छोटा सा मॉल है, यानी आप यहाँ पे भी जाके आप चीजें समझ सकते हैं जो अलग अलग स्टेट में है, जैसे कोलकाता है, आसाम है, एचपी है, यानी आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश और इवन नागपुर में भी कंपोजिट रीजनल सेंटर है यशवंत स्टेडियम में। तो मुझे लगता है कि काफी चीजें हमें जब तक कि आप अवेयर नहीं रहेंगे या समझ नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है आपके शहर में ही कोई ऐसा कंपोजिट रीजनल सेंटर होगा, शायद आपको पता नहीं होगा या आप वहां से कनेक्ट नहीं हुए होंगे। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर है, आप जरूर समझे और यहाँ पे जरूर कांटेक्ट करें, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर मिलेगा। एज अ पॉलिसी, एज अ जीआर, जो भी आपको आपकी एज पर नीड है, आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट तो हो ही जाएगी। नेक्स्ट। हाँ, अभी मैंने जैसे बताया कि इसके लिए आपका स्पेशली जो एरिया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म, इसके लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट है मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए। बहुत से पेरेंट्स को नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारे में समझना पड़ेगा। आप जिस तरह, हम कोई भी चीज को हमें पता है कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो मैं बोलता हूँ कि आपने नेशनल ट्रस्ट एक्ट का ऐप भी डाउनलोड करके रखना चाहिए अपने मोबाइल में, क्योंकि नेशनल ट्रस्ट एक्ट आपके बच्चों से रिलेटेड पूरी पॉलिसीज डेवलप करता है, रिलेटेड टू अलग अलग एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड। एक अच्छे मॉड्यूल है। कोई पेरेंट्स एसोसिएशन ये चाहती है कि हमें एक अच्छा सेंटर स्टार्ट करना है, काफी लास्ट सेशन में काफी लोगों ने शेल्टर हाउस और रेसिडेंशियल हाउस हम कुछ करना चाहते हैं ऐसे पूछ रहे थे। मुझे लगता है आपने डेफिनेटली नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाना चाहिए। इसमें लगभग अलग अलग 9 से 10 अलग अलग स्कीम्स है। बीइंग एज अ पेरेंट्स आप वो चला सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा सेटअप चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमें एक अच्छे से, आप एक छोटे से फ्लैट के रूम में भी ये सेटअप चला सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। खाली आपके पता होना चाहिए कि क्या जरूरत है। एक थेरेपिस्ट की जरूरत है, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, नथिंग। थेरेपिस्ट आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। आपने जरूर ये चीजों को समझना है, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट्स आप जितना कर पाएंगे ना, वो शायद नेशनल ट्रस्ट इसके लिए फाइनेंशियली, इसका अलग से लगभग 100 करोड़ का बजट होता है, जिसके अंदर अलग अलग स्कीम से रिलेटेड इसको फंडिंग होता है। और इनको इसमें लीगल गाइडेंस का पार्ट आ गया, आपको लीगल एडवाइस आ गई, नेशनल ट्रस्ट की अलग अलग स्कीम्स है, उसके बारे में आपको ये चीजें पता चलेगा, जो स्पेशली ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए काम करता है। एक सेपरेट एक्ट है ये आपको, और इसका सेपरेट डोमेन भी है। तो ये चीजों को आप समझेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपको काफी इसमें हेल्प होगा। तो आप जरूर इसको पढ़िए। नेक्स्ट। काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं, मैं सबके सवाल का जवाब दूंगा जो आपने यहाँ पे किया है। हाँ, इसमें सबसे पहले नेशनल ट्रस्ट की क्या क्या स्कीम्स है ये भी मैंने आपको, जैसे मैंने बताया कि आप जरूर पढ़िएगा। तो देखिए, एक सिंपल सी स्कीम है जो मैं बताता हूँ, अर्ली इंटरवेंशन एक्टिविटीज है। कुछ बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आप समझ लीजिए, जो कम्युनिटी में आ गया ना, आप उसको प्रोसेस में ला सकते हैं। जो कम्युनिटी में आने के लिए तैयार आ रहा है प्रोसेस में, उसको आप रोक सकते हैं। देखो, दो चीजें जब तक ये बैलेंस नहीं होगी ना, तो हम कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन या हम लॉन्ग टर्म जिसको बोलते हैं एम्पावरमेंट या जो भी चीजें नहीं कर पाएंगे। जो चीज बाहर आ रही है उसको कैसे उसकी ग्रेविटी कम करे, और जो एग्जिस्टिंग है उसको कैसे रिहैब में और मेनस्ट्रीमिंग कर पाए। ये दो चीजों का जब बैलेंसिंग होगा ना, तो ये शायद सभी स्कीम उस बेस पे काम करती है। स्कीम्स, ये शब्द सुनने के लिए आपको थोड़ा गड़बड़ लगेगा, लेकिन जो भी स्कीम्स रहेगी काफी अच्छे तरीके से केयर गिवर को ट्रेनिंग देने से लेके, तो मेंटर को ट्रेनिंग देने से लेके, बच्चों को डे केयर सेंटर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी यहाँ पे पूरा फंडिंग होता है।
आपने डेफिनेटली सोचना चाहिए और समझना चाहिए। और काफी यानी 3 एरिया में है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन पे मेजर इनका काम होता है। और इसमें अलग अलग जितनी स्कीम्स है आप समझेंगे तो मुझे लगता है बेसिक आज मार्केट की डिमांड है बीइंग एज अ प्रोफेशनल, जो अर्ली इंटरवेंशन हम पे बात करते हैं, शायद आपको सभी ने लोगों ने रिसोर्स पर्सन ने बताया होगा इसका इम्पोर्टेंट। और बाद में अभी इम्पोर्टेंट जो नीड लगती है दिस डे केयर सेंटर। बहुत से पेरेंट न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बोथ आर द वर्किंग, तो मुझे लगता है ऑटिस्टिक बच्चों को संभालने के लिए कोई ना कोई अच्छा डे केयर सेंटर जरूर होना चाहिए। उसका मॉड्यूल ये आपको नेशनल ट्रस्ट एक्ट की वेबसाइट पे मिलेगा और उसका हेल्प आपको कहीं पे भी हो सकता है। आप एक फ्लैट में भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, इतना अच्छा मॉड्यूल है, जरूर सोचिएगा। नेक्स्ट। हाँ, अभी हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जो भी स्टेट में काम करते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, लोकल लेवल कमेटी होना चाहिए। जिस तरह आपने एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनली रिहैबिलिटेशन का आपने एनजीओ या जो भी कंपनी में रजिस्टर्ड किया है, उसी तरह आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट क्या बोलता है कि सेक्शन 13A आपके अंदर एक लोकल लेवल पे कमेटी होना चाहिए, जो पेरेंट्स एसोसिएशन, जिसको LLC बोलते हैं, लोकल लेवल कमेटी, या आपने रजिस्टर्ड करना ही चाहिए बीइंग ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि पेरेंट जब तक के एक फ्रेम में नहीं आएंगे, नॉट इन पर्टिकुलर एनजीओ लाइक दिस बेस ऑफ, आपको एक्ट बेस उसको लाना पड़ेगा जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। आप नेशनल जितनी ऑर्गेनाइजेशन पेरेंट्स की है या आप ग्रुप बनाते हैं, आप LLC फॉर्म कर सकते हैं। और LLC को नेशनल ट्रस्ट एक्ट स्पेशल राइट्स देता है, जिसके अंदर आप साल भर में अलग अलग एक्टिविटी भी ले सकते हैं। तो शायद मुझे लगता है ये आपके तरीके सभी जितने भी जो भी पेरेंट्स इसमें सोच सकते हैं कि हमें एज अ लोकल लेवल, देखो एक आदमी जरूर कुछ नहीं कर सकता है, डेफिनेटली हम 10 लोग मिलकर जरूर कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई, अभी जैसे ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हर किसी का एक रिसोर्स पर्सन है, कोई सोशल मीडिया में, कोई करस्पॉन्डेंट में है, कोई और कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी लिया है। तो लोकल लेवल कमेटी भी उसी तरह से काम करती है बच्चों से डेवलपमेंट के बारे में, और उसको नेशनल ट्रस्ट पूरा सपोर्ट करता है। शायद आपने इस बारे में जरूर सोचना चाहिए और ये समझना चाहिए इसके क्या फायदे हैं और क्या चीजें हम लॉन्ग टर्म से सोच सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ट्रस्ट एक्ट बोलो या गवर्नमेंट बोलो या कोई भी पॉलिसी मेकिंग, कोई तो भी पेरेंट्स ही इनिशिएटिव लेता है, या कोई कम्युनिटी का पर्टिकुलर एक्सपायर्ड पर्सन उसकी एरर्स ढूंढता है, मार्केट की क्या डिमांड है। जितना मुझे समझ में आया, शायद LLC वाले काफी अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को आप डायरेक्टली फेस करते हैं। और आप जरूर इसके बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट। हाँ, ये शायद आपको किसी ना किसी ने तो भी बताया होगा लीगल गाइडेंशिप के बारे में। ये LLC का रोल इसमें मेजर रहता है। जैसे आपने LLC फॉर्म किया नेशनल ट्रस्ट के एक्ट के अंतर्गत, LLC को भी लोकल लेवल कम्युनिटी को कुछ चीजें कलेक्टर के कोऑर्डिनेशन से आप अपने बच्चों को लीगल गाइडेंशिप के बारे में जरूर, आपका बच्चा लीगल गाइडेंशिप के बारे में हो गया, आपने किया, लेकिन हजारों पेरेंट्स शायद ऐसे होंगे कि शायद कहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि 90% अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी प्रोसेस है, जो भी चीजें सर्टिफिकेशन की और पोर्टल हो चुकी है। तो काफी लोगों को आज भी हम रूरल बेस में जाएंगे तो आज वैक्सीनेशन का भी पार्ट अप्लाई करने जाते तो लोगों को एक्सेसिबल नहीं है। तो बीइंग एज अ लोकल लेवल कमेटी, आप लीगल गाइडेंशिप का भी काम नेशनल ट्रस्ट के एक्ट के अंतर्गत लोगों को बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कोऑर्डिनेशन में कर सकते हैं, जिसके पूरे चेयरमैन कलेक्टर रहते हैं। डेफिनेटली कलेक्टर पूरा अथॉरिटी रहती है, कमेटी रहती है, लेकिन जो एक्सेस और जो स्पीड अप आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, सही या गलत। बहुत से पेरेंट्स को ये भी नहीं पता चलता है कि लीगल गार्डियनशिप कब लेना है, किसको लेना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या उसके इम्पैक्ट रहेंगे, शॉर्ट टर्म क्या रहेगा, फिर लीगल एडवाइजर कौन रहेगा, कैसे करना है, एप्लीकेशन कहाँ करना है। ये बेसिक FAQs है, कोई बड़ा अलग चीज नहीं है जो हर पेरेंट्स को आना है। शायद 10-15 पेरेंट्स ने कर लिया तो वही एरर सभी पेरेंट्स के सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ स्निक ऑर्गेनाइजेशन ने भी, या आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेशन है, उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट लेवल पे या जहाँ पे भी आप है वहां पे जरूर इसके बारे में समझिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज है लीगल गार्डियनशिप का। जितना मैं काम करता हूँ अभी तक कि हमने 1700 लोगों को लीगल गार्डियनशिप के लिए लाइनअप किया है, तो मुझे पता है जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ सक्षम है, स्वीकार करके काम करती है, तो बेसिक चीजें है, एप्लीकेशन कहाँ करना है, ये यहाँ तक से शुरुआत है। तो मुझे लगता है ये भी चीजें पेरेंट्स ने समझना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इसके बहुत से फायदे आपके बच्चों के, क्योंकि कोई भी माँ बाप चाहता है, जितना मुझे अभी तक समझ में आया है, कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। अभी देख के जितने में हजारों 35,000 लोगों से मेरा इंटरेक्शन है,
जितने साल 2 साल में मैं मिलता हूँ अलग अलग पेरेंट्स से, पेरेंट्स कुछ डिमांड नहीं करता है, नोबडी इन द स्कीम, मुझे क्या पैसा मिल रहा है, ये नहीं, यही सवाल करता है कि ठीक है सर, मैं अभी 18 साल का बच्चा है, मैं 50 साल का हो गया हूँ, अभी मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा। तो मुझे लगता है आपके सवालों का जवाब यहाँ मिल सकता है और उसको एक स्ट्रक्चराइज मिल सकता है जो लीगल बेस पे फ्रेम में आ सकते हैं आप। नेक्स्ट। हाँ, अभी होगी बात आपके राइट्स की, आपने क्या करना चाहिए, कहाँ पे बच्चा, एजुकेशन, सब चीजों के बारे में मैं अभी तक बताऊंगा, एजुकेशन का अलग से बताऊंगा। लेकिन काफी पेरेंट्स को ये भी रहता है कि चलो कुछ अच्छा बच्चों में स्किल है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों में 3 कैटेगरी अलग अलग है जितना मुझे पता है, कुछ हाईली इंटेलेक्चुअल है, कुछ लोगों को स्किल है, कुछ लोगों को बहुत सी चीजें पसंद भी है। फिर पेरेंट्स कुछ करना चाहते हैं, कुछ पेरेंट्स के पास फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए तो शायद आप एक ग्रुप बना के 10 लोगों का ग्रुप बना के आप NHFDC जो नेशनल इंस्टीट्यूट है डिसेबिलिटी बच्चों के लिए काम करती है फाइनेंस देने का, आप एक अच्छा सा एक ग्रुप फॉर्म कीजिए और उसमें जैसे किसी पेरेंट्स ने बोला है कि एक छोटा सा वर्कशॉप डालिए, कुछ क्राफ्ट मेकिंग का, जो भी मार्केट एज पर द डिमांड। आप अच्छा IT के बारे में भी काम कर सकते हैं, सोल्यूशन सेक्टर पे अपने बच्चे सब, ये ऑटिस्टिक बच्चे इसमें भी काफी अच्छा काम करते हैं, और कुछ जो उनके आपके ग्रुप को अच्छा लगेगा। इसके लिए समझ लीजिए आपको 5-10 लाख का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जरूर है कि एक कोई पेरेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तो उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्रुप में कहीं तो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, तो उसका जरूर बेनिफिट लीजिए। आप नहीं लेंगे तो शायद ये पैसा लैप्स होता है, फिर हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं नहीं, योजनाएं बहुत है, हमें पता नहीं कि एक्सेस कहाँ है, कैसे जानना है। यहाँ 5 लाख से लेके 10 लाख तक के आपको अमाउंट NHFDC कभी भी सपोर्ट कर सकता है एज ए ग्रुप। आप अच्छा कोई प्रपोजल बनाएंगे तो जरूर NHFDC उसको एक्सेप्टेबल करता है और फंडिंग करता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली 4% है और काफी लंबा टाइम मिलता है। शायद एक अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर से एंगल से भी आप इसको सोच सकते हैं, जो बच्चों को बीइंग एंगेज आप रखना पसंद करेंगे, तो शायद NHFDC को भी आप समझ लेंगे। ये उनकी विजिट वेबसाइट है, आप जरूर पढ़िए। देखो कोई भी चीज मैं आपको 10 मिनट में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप 3 दिन भी आप बैठेंगे और सब कुछ सुनेंगे ना, तो शायद आप अवेयर हो सकते हैं। लिटरेस होने के लिए आपको उस साइट पे जाना पड़ेगा, हर चीज पढ़ना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन मोड में आना पड़ेगा, खाली सुन के नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन में आते एरर निकलेंगे, एरर निकलते ही आपको काफी चीजें समझ में आएंगी और उसको सॉर्ट आउट करते करते आप एक अच्छे एक स्ट्रक्चर पे पहुंच सकते हैं। तो ये जरूर ये चीजों को समझना चाहिए आपने। नेक्स्ट। हाँ, अभी एजुकेशन रिलेटेड है, कुछ स्कॉलरशिप है, काफी पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता है, काफी लोगों को लगता है काय के लिए 200-500 रुपए का हमने स्कॉलरशिप लेना चाहिए, 1000 रुपए जो भी मिलते हैं, डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए जिसकी अफोर्डेबिलिटी है। लेकिन मैं बहुत से पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप 500 रुपए की आपके लिए शायद वैल्यू नहीं है, लेकिन आप एक रूरल बेस पे जाएंगे ना, मैं गढ़चिरौली से लेके तो काफी ट्राइबल एरिया में भी काम करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट एरिया वही है सिटी से भी ज्यादा। तो एक 1000 रुपए शायद मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कोई रूरल एरिया के लिए 1000 रुपए शायद मंथली एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। ये आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन जरूर है। और 1000 रुपए जितनी मैं मदर से मिलता हूँ, हम कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह देते हैं गवर्नमेंट की एक्सेस करके। तो ये नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन जो है ना, हर साल आपको मालूम है, समझ लीजिए कोई बच्चा PG के लिए जा रहा है, कोई बच्चा ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है, कोई बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, तो 2 लाख से लेके 10 लाख तक की स्कॉलरशिप्स है हर चीज के लिए। आपको लैपटॉप चाहिए, जो हेयरिंग एड बच्चा है उसको हेयरिंग एड से लेके, तो आप जरूर इसको समझे, आपको विश्वास होगा इसमें। समझ लीजिए 2000 लोगों का एप्लीकेशन गवर्नमेंट को चाहिए, तो शायद मुझे लगता है 200 लोग भी अप्लाई नहीं करते हैं। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं करते हैं, पता ही नहीं, एक पहला विषय, कभी कोशिश नहीं की, दूसरा सब्जेक्ट, और करना भी क्यों, क्योंकि हमें तो क्या 1000-2000 रुपए में शायद फर्क नहीं गिरता है, लेकिन आपको जरूर नहीं फर्क होता होगा। बहुत से पेरेंट्स से मैं आंसर लेता हूँ तो ये बोलते सर जान लीजिए ना, 2000 रुपए के लिए क्या अप्लाई करना है। आप 2000 रुपए जरूर लीजिए, मैं इसलिए बोलता हूँ लीजिए, और शायद कोई नीडी पर्सन को सपोर्ट कीजिए, या आपके बच्चों से रिलेटेड जरूरत नहीं होगा तो कोई रिहैब सेटअप के लिए मदद होगी वो पैसों की। ये आपके बच्चों के राइट्स है, आप समझ लीजिए, मैं आपको लेना है नहीं, गलत बात नहीं है। या आप नहीं लेंगे तो ये पैसा वेस्ट जाएगा मीन्स लैप्स होगा, कहीं खर्चा नहीं होगा। और शायद आप लेंगे और आपको लगता है ये 10,000-5,000 से, तो शायद आप सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी अदर डिसेबिलिटी बच्चों को, या आपके बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोग्रेसिव प्लान करते टाइम। तो ये जरूर चीजें आपको समझना पड़ेगा। काफी अच्छा पैकेज है, आप समझ लेंगे तो आप जाइए, आज भी ये साइट पे आप देख सकते हैं क्या क्या स्कॉलरशिप है। आज जरूरत नहीं, शायद आपका बच्चा 5th में है, 10th में है, शायद PG के लिए लॉन्ग टर्म से जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, कल जाके मेरा बच्चा हायर एजुकेशन के लिए बाहर अब्रॉड जाएगा,
फेलोशिप की जरूरत रहेगी, पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक के लिए क्या क्या है, नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप क्या है। तो ये आप आज हमें जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए हम प्लान करते हैं ना कि आज ये 10 साल के बाद ये ट्यूटोरियल क्लासेस लगाएगा तो 10 लाख रुपए की प्रोविजन करना है, डेफिनेटली हमारे छोटे ये स्पेशल चाइल्ड बच्चों के बारे में भी आपने उस तरह से सोचना जरूरी है। बहुत बार मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ सर क्या पढ़ेगा, इस तरह से निगेटिव आंसर आते हैं तो शायद हमें भी अच्छा लगता नहीं, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप अपने नॉर्मल बच्चों की तरह बच्चों को देखिए, जो प्लान आप अपने पैरेलली नॉर्मल चाइल्ड के लिए सिबलिंग के लिए कर रहे हैं वही प्लान एवरीथिंग इज सेम। लाइक मैं उससे तो बोलता हूँ 2 गुना आगे अपने अपने ये स्पेशल बच्चों के लिए करना चाहिए। स्पेशल बच्चे के लिए जरूर आप प्लान नहीं करेंगे तो शायद एजुकेशन एंगल आपको पीछे मिस करेगा, क्योंकि एजुकेशन ऐसा की है जो उसको प्रेस्टीज देगा या कम्युनिटी में उसका वेलकम होगा, इंक्लूजन के लिए बहुत सपोर्टिव रहता है। नेक्स्ट, हाँ, आर्टिफिशियल लिम्स का बहुत से लोग हैं अपने बच्चों को स्पेशली डिसेबिलिटी में ऑटिस्टिक बच्चों का काफी मॉडिफिकेशन जो अप्लायंसेस है फूड के या खाते टाइम चम्मच का होगा, प्लेट होगा, कुछ कुछ चीजें, ये अभी तक इतना लेटेस्टली एलिम्को कंपनी में नहीं आया। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज है, अंडरटेकिंग ऑफ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत चलता है। इसमें काफी वेरियस ऑफ अप्लायंसेस है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों से रिलेटेड नहीं है काफी चीजें इसमें। जो लेटेस्ट डिवाइसेस हम बोलते हैं, जो मार्केट का सिनेरियो है, जो हम अदर कंट्री वेस्टर्न कंट्री में देखते हैं कि हर बच्चों का अलग अलग एज पर द नीड ऑफ उसकी अलग अलग स्पून से लेके कटोरी से लेके तो प्लेट तक की, इवन चेयर में कैसे पोस्चर चाहिए उस हिसाब से भी अलग अलग चीजें बनती है, क्योंकि उसका काफी चीजों का इसमें आप ये शायद ऑटिस्टिक बच्चों से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अदर देन कल जाके कोई अच्छा इसमें अपने बच्चों से अप्लायंसेस से रिलेटेड कुछ चीजें आ जाए तो शायद हमें उसका काफी बेनिफिट हो सकता है। कम आपको विश्वास होगा ये ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर 200 से 250 करोड़ रुपए के अप्लायंसेस डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आपने काफी चीजें मेगा कैंप देखे होंगे, शायद थावरचंद गहलोत जी है जो मिनिस्टर है, वो अलग अलग जगह जाके 1-1 करोड़ के अप्लायंसेस फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिस ओनली फॉर द थ्रू एलिम्को वेबसाइट पे आपको सभी चीजें दिस सब्सिडाइज बेस डायरेक्टली, कुछ चीजें तो 80% ऑफ सब्सिडाइज है। और व्हीलचेयर जो मार्केट की 10,000 की व्हीलचेयर है यहाँ 3,000 रुपए में मिलेगी और ISO मार्केट मिलेगी, और काफी करस्पॉन्डेंट करते तो काफी चीजें सपोर्टिव है जो आपके लिए नहीं, लेकिन बीइंग एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप अदर्स लोगों के लिए भी काम करते हैं तो आपको जरूर इसका फायदा होगा। नेक्स्ट, हाँ, ये चीज शायद आपको पता होगी, काफी शायद एरर इस बारे में ऑल ओवर स्टेट में अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन मैं नागपुर से हूँ तो मुझे बताने में काफी इसमें आनंद भी है और मैं इसके लिए एक अच्छा समझता हूँ। अभी मेन चीज क्या है ना, गवर्नमेंट सेक्टर का एक लैकुना बोलो या करंट नीड बोलो कि हम मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है ये बोलने से नहीं होता है, उसको ऑन पेपर बताना पड़ता है। तो ऑन पेपर यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशन 2013 को ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है सेपरेटली। 2016 को 25 अप्रैल को गवर्नमेंट ने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में, आपको विश्वास होगा, गवर्नमेंट का पहला एक ऐसा सर्कुलर जो एक डिसेबिलिटी के लिए अलग से निकला है, वो है ऑटिज्म बच्चों के लिए, और सेपरेट गाइडलाइन है कि ये बच्चों को किस तरह इवैल्यूएशन और असेसमेंट करके सर्टिफिकेट देना चाहिए। ये 2016 में निकला। 2016 के बाद नया एक्ट आया और 2018 में नई असेसमेंट गाइडलाइन आई जो बाकी डिसेबिलिटी के लिए है, जिसमें ऑटिज्म बच्चों के असेसमेंट गाइडलाइन नहीं है। ये ऑटिज्म सर्टिफिकेट देने का सर्कुलर 2016 में आया। शायद मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो आज भी महाराष्ट्र में बहुत से डिस्ट्रिक्ट में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मैं MP में स्टार्ट चेक किया था, वहां नहीं मिलता है, अलग अलग स्टेट में नहीं मिलता है। हमने नागपुर में इसको एज पर द ये सर्कुलर और गाइडलाइन के बेस पे स्टार्ट किया। शायद हर्षाली मैडम उसकी वन ऑफ द बेनिफिशियरी है और लगभग अभी तक के हमने 110 लोगों को सर्टिफिकेशन भी दिया है और एज पर रूल, एज पर इवैल्यूएशन सिस्टम और ऑथेंटिकली दिया है। शायद उसका बेनिफिट आज नहीं, आपको 10 साल के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत जैसे पेरेंट्स को बोलता हूँ कि सर्टिफिकेशन इज नॉट अचीवमेंट। ये हमारा एक बहुत सर्टिफिकेट आ गया, यानी कोई अपने को अलग सा कुछ मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्टिफिकेशन इज लाइक एक आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है जिसके वजह से हम अलग अलग चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि सब सर्टिफिकेशन मिल जाए तो बस अभी हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया। काफी लोग खुश भी होते हैं, मुझे लगता है नहीं, ये खुशी यानी सर्टिफिकेट मिलना इज लाइक ए लेबलिंग।
आप अपने बच्चों को लेबल करते हैं माय चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, कोई ये नहीं बोलता है मेरा बच्चा अभिजीत है, मेरा बच्चा राजू है, जो भी नाम, तो हम हमारे बच्चों को इंट्रोड्यूस लाइक अ सर्टिफिकेशन के नाम से करते हैं, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, अच्छा ऑटिस्टिक है, इसको सर्टिफिकेट मिला है अभी ऑटिस्टिक का। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, आप उसको एक करियर की तरह मत देखिए, उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मत देखिएगा, ठीक है प्लीज। नेक्स्ट। हाँ, ये किस तरह होता है, आप स्वावलंबन पोर्टल पे जाइएगा, बहुत से लोग पूछते हैं कहाँ पे जाना है, मैंने यहाँ पे काफी चीजें उसको सिंक्रोनाइज करके दी, 10 स्टेप में किस तरह गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन देता है। शायद आपने 1 जनवरी 2021 में गवर्नमेंट ने डिसेबिलिटी अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि अभी पूरे देश में सभी जगह ऑनलाइन पोर्टल, स्वावलंबन पोर्टल से ही सर्टिफिकेट इशू होगा, दिस इज अ मैग्नेट, दिस इज अ कंपल्सरी, उसका नोटिफिकेशन निकला है। और वो नोटिफिकेशन ये 1 तारीख से पूरे देश में कंपलसरी होगा, कोई भी मैन्युअली अलग अलग सर्टिफिकेशन पूरे देश में यूनिफॉर्मिलिटी के लिए किया गया। वो पोर्टल ये है स्वावलंबन नाम का, आप ये वेबसाइट पे जरूर जाइए, उसमें आप ऑटिस्टिक बच्चा करके उसको सिलेक्ट कीजिए, सर्टिफिकेशन नो, आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई तो करके रखिए। बहुत से पेरेंट बोलते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में शुरू ही नहीं हुआ, अरे शुरू नहीं हुआ है, काफी चीजें, अभी वैक्सीनेशन क्या है हमें कब मिलना है पता नहीं, लेकिन हम तो अप्लाई तो कर रहे हैं ना, तो हम कर लीजिए अप्लाई। आप अप्लाई नहीं करेंगे तो डोमेन पे पेंडिंग नहीं दिखेगा, डोमेन पे पेंडिंग नहीं रहेगा तो वहां की सिस्टम सेंसिटाइज नहीं होगी और आप भी उसको पुशअप नहीं कर पाएंगे। आप बोल सकते कि हमने 6 महीने पहले अप्लाई किया था, लेकिन पेरेंट्स ही बहुत बार ऐसा होता है कि वो शुरू करेंगे और बाद में हम जाएंगे, ये माइंडसेट में हम हर बार रहते हैं। मैं बोलता हूँ कि पहले आप शुरू हो जाइए, वो शुरू होना जरूरी है। आप नहीं आगे बढ़ेंगे तो शायद सिस्टम भी कभी कभी आपकी राह देखती है। तो मुझे लगता है सर्टिफिकेशन के लिए आपने सोचना जरूर चाहिए, कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म एंगल के लिए और लीगल गाइडेंसशिप के लिए आपको काफी काम आएगा। नेक्स्ट। हाँ, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, जो मैडम ने बताया था कुछ चीजें, आप काफी, मैं एजुकेशन से ही बिलोंग करता हूँ, मेरा काम एजुकेशन रिलेटेड काम है, रिहैब से रिलेटेड डिसेबिलिटी में। देखिए कितना बड़ा काम हुआ है देश में, आप शायद कुछ सीनियर लोग इसमें होंगे, तो पहले एजुकेशन कमीशन जो था 1996 में एस्टेब्लिश हुआ, बाद में आपने सुना होगा जो हमारा जो वेलफेयर डिपार्टमेंट था वो IDDC करके था, आपने सुना होगा, डिसेबल चिल्ड्रन के लिए 1974 में एक प्रोग्राम चालू हुआ, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसको हम बोलते थे यानी एकात्मिक शिक्षण जो एजुकेशन था, अभी उसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन का नाम तब दिया गया था। बाद में ना एक अलग से नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE आया, काफी चेंजेस हुए। बाद में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन आया, DPE, जो हमें अभी आप बताएं। बीच में जो प्रोग्राम से मैं काम करता हूँ, पहले वो सर्व शिक्षा अभियान नाम आपने काफी जगह सुना होगा, अभी वो समग्र शिक्षा अभियान नाम हो गया। बाद में राइट्स ऑफ एजुकेशन बिल भी आया है, कितने पेरेंट्स को पता नहीं, ये पढ़ना चाहिए आप। और अभी तो करंटली 2008 के बाद, अभी तो नेक्स्ट मैडम प्लीज। हाँ, अभी देखिए ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। आप 2005 में जब हम काम करते थे तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, बाद में राइट्स ऑफ एजुकेशन आए जो RT जो बोलते हैं। अभी करंटली लास्ट ईयर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे है, शायद उसका एक आपका सेशन हुआ है, उसमें किस तरह से अपने बच्चों को बेनिफिट है। मैं बोलता हूँ ये डीमार्ट है, बिग बाजार है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज ए एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए। आप इतना कुछ लेके जा सकते हैं ना ये नई पॉलिसी को, मैं तो बोलता हूँ आप कुछ नहीं समझोगे चलेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, क्योंकि ना इसमें 5th और 7th के बाद में ही कुछ स्किल बेस्ड प्रोग्राम गवर्नमेंट डिजाइन कर रही है एज पर द चाइल्ड की नीड क्या है। जो हम बोलते थे ना कि अदर कंट्रीज में होता है कि उसकी इंटरेस्ट पे उसको एजुकेशन दिया जाता है, तो लाइक दिस उसका एक रिफ्लेक्शन आपको ये पॉलिसी में दिखेगा। शायद दिस अ राइट टाइम कि हमारे बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको समझ लेंगे और वो डायरेक्शन में मूव होंगे। नेक्स्ट। ये कुछ ओपनिंग स्कूलिंग यानी जैसे नेशनल ओपन स्कूलिंग बोलते हैं हम, इंस्टीट्यूट है। काफी पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे एक्सेस नहीं है, कुछ एरिया ऐसा नहीं, मैं बोलता हूँ हर जगह सभी चीजें है, लेकिन कहीं नहीं है तो डेफिनेटली आपने नेशनल ओपन स्कूलिंग का बेनिफिट लेना चाहिए। ये आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल ओपन स्कूलिंग का आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा और आप उसके अंदर बच्चों को पढ़ाई कर सकते हैं 10वीं 12वीं तक के। तो आप बच्चों को डेफिनेटली जहाँ पे आपको लगता है यहाँ अच्छी स्कूल नहीं, यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं, या जो भी कुछ है, तो जो भी कोई रूरल एरिया में भी काम कर रहा होगा तो आप जरूर नेशनल ओपन स्कूलिंग का बेनिफिट लीजिए। आपके बच्चे को मेरे बच्चों को कोई एंटरटेन नहीं करता है, मेरे बच्चों को स्कूल में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं, काफी लोग बोलते हैं मुझे। मैं बोलता हूँ कि ठीक है ना, तो आप पढ़ाई क्यों छोड़ रहे बच्चों का, आप घर में भी बैठ के पढ़िए।
आज देखिए जितना कारपोरेट सेक्टर काम कर रहा है ना, जो लोग काफी काम करते हैं कारपोरेट सेक्टर में, वो पैरेलली ओपन स्कूलिंग, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए क्या? वो तो इतना एस्टेब्लिश्ड होके भी बीइंग एज अ प्रोफेशनली बाहर काम करते, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे हैं, काफी डिग्रियां ले रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं, जो बीइंग एज अ प्रोफेशनल उनको नीड है। फिर हमारे बच्चों ने क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ कि आपको नॉर्मल स्कूल के बारे में, इंक्लूजन में कोई दिक्कत है तो आप अल्टरनेटिव आपके पास गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, वो है ओपन स्कूलिंग। आप डेफिनेटली इसका फायदा लीजिए। इसको काफी स्ट्रक्चराइज करा और ये सीबीएसई पैटर्न पे काम करता है, और इसमें लैंग्वेजेस का भी एरर नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड है। आप इसको समझ लीजिएगा। और कई बच्चों को शायद कहीं स्कूलिंग का इशू है, तो नेशनल ओपन स्कूलिंग के थ्रू भी आप अपने बच्चों को 10वीं तक के आगे लेके जा सकते हैं, ना कि उसको ड्रॉप आउट करना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट। हाँ, अभी स्किल ट्रेनिंग की बात आती है। कुछ बच्चे अभी 18 साल के हो गए या होने वाले, या कुछ बच्चे 15 साल के, प्री स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप अभी अप्लीकेबल हैं। यानी उसको प्री वोकेशनल प्रोग्राम बोला जाता है, जो 14 से 18 साल के पीरियड में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपको रिफ्लेक्शन दिखेंगे। तो आपने एज पर आरपीडब्ल्यूड एक्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सेक्शन 4 में आप जाएंगे तो पढ़िएगा। और उसमें अभी काफी चीजें गवर्नमेंट 4% ऑफ रिक्रूटमेंट दिया है। आपको मालूम है हमारे स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन आया है। पहले ये 3% था, अभी ये 4% हुआ है। 4% मीन्स आपको पूरे 100 सीट में 4% ऑटिस्टिक बच्चे के लिए नहीं है, 1 सीट्स आपको ऑटिज्म बच्चों के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस के लिए भी है। यानी कहीं एक पोस्ट निकलती है तो उसमें एप्लीकेशन आपका बच्चा बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकता है और रिक्रूट भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की शायद आपने कितनी ऐड देखी है मुझे पता नहीं, जॉब प्लेसमेंट की जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, उसमें आपको अभी स्पेसिफिक 1% रिजर्वेशन, 4% का 1% रिजर्वेशन, ये 4 डिसेबिलिटी में डिवाइड होता है। तो मुझे लगता है आपने जरूर ये सोचना चाहिए। और मैं बहुत बार बोलता हूँ, माइल्ड और मॉडरेट लेवल के बच्चे ना, कोई भी डिसेबिलिटी के लिए वो हर चीज के लिए कैपेबल है और अच्छे से। और इवन नॉट इन की पर्टिकुलर क्लास 3 क्लास 4 पोस्ट के लिए, काफी अच्छी पोस्ट के लिए भी बच्चे अप्लीकेबल हो रहे हैं और कर रहे हैं। और समाज भी ना धीरे धीरे एक्सेप्टेंस ले रहा है, ये भी लोग अलग हैं, क्योंकि धीरे धीरे ना कम्युनिटी में भी अच्छा अवेयरनेस आ रहा है। ऐसा नहीं कि पहले जो लोग पागल बोलते थे आज भी बोलते नहीं, क्योंकि लिटरेसी है, सोशल मीडिया है, काफी अचीवमेंट के पैरामीटर हम आजकल गूगल से सर्च करके लोगों तक मोटिवेशन लेवल पे देते। उसमें साइंटिस्ट लोगों के नाम, बीइंग अ पेरेंट्स हम भी लोगों को बताते, ये साइंटिस्ट 10 साइंटिस्ट ये बिलोंग करते हैं डिसेबिलिटी, ये रोल मॉडल है ना। तो लोग अभी अवेयर हो रहे हैं, नई जनरेशन बच्चों को एक्सेप्ट है कि मेरा एक दोस्त ऑटिस्टिक बच्चा है, मेरा दोस्त एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी वाला है, एक्सेप्ट करते हैं बच्चे, कम्युनिटी भी एक्सेप्ट कर रही है। शायद हम कहीं तो भी पीछे रह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपने जॉब एंगल से भी, बहुत से लोग बोलते हैं क्या पढ़ेगा, पढ़ के क्या करेंगे, ऐसा बहुत से पेरेंट बोलते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप नॉर्मल बच्चे के बारे में इतना सोचते थे क्या। 10 बार हम अपॉर्चुनिटी देते हैं हमारे बच्चों को, फेल भी होते हैं तो नॉर्मल चाइल्ड सिबलिंग को, तो फिर हमने हमारे बच्चों को 10 क्या 15 बार देना चाहिए, कहीं ना कहीं तो अचीवमेंट आएगा। तो जरूरी ये बारे में सोचना चाहिए और रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहिए। नेक्स्ट। हाँ, ये कुछ साइट्स हैं, शायद आप जाके इस पे देखिए। इसमें स्किल ट्रेनिंग के बारे में नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आपके माहिती के लिए स्किल काउंसिल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अलग सेपरेट गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट निकाला है, जो स्पेशली डिसेबल बच्चों के लिए प्रोग्राम डेवलप करता है। और इनका एक प्लान, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर बीच में आया था, आने वाले 5 साल में लगभग पूरे भारत देश में 1 लाख लोग दिव्यांगजनों को प्लेसमेंट करने का प्लानिंग ये प्रोग्राम के थ्रू, स्किल काउंसिल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के थ्रू हो रहा है। अभी हमें समझना है कि हमारे बच्चे इस प्रोग्राम में किस तरह पार्टिसिपेशन करें, किस तरह हमारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। देखो, बहुत बार पेरेंट्स का भी कई जगह मैं देखता हूँ कि कोई रेडीमेड चीज हम तक कोई ला दे। मैं बोलता हूँ देखो, हम ऑलरेडी थोड़ा कहीं तो भी पीछे है, हमारे बच्चों से रिलेटेड कितना जो चाहिए एक्सेस नहीं है, तो हमें शायद उतना ढूंढना पड़ेगा और उतना ही ढूंढ के उसको इनकैश करना पड़ेगा। मालूम होने से होता नहीं, उसको जाके मिलना, सर्च करना कहाँ पे एप्लीकेशन है, किस तरह से उसके इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, उसके ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, मेरे बच्चे की स्किल क्या है, मेरे बच्चे की एबिलिटी क्या है, उससे कोरिलेटेड कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है क्या,
ये चीजों का भी आपका सर्चिंग मोड ऑलवेज रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के आज संडे है तो 2 घंटे दे दिया सुनना, क्योंकि अपडेटेड चीजें होती रहती है। शायद हमें पता नहीं कि मार्केट में आज क्या आया है। हम अपडेट रहते हैं टेक्नोलॉजी में, हमारे मोबाइल में ये एक ऐप आ गया तो हम 10 लोगों को हम बता देते हैं। शायद गवर्नमेंट सेक्टर भी उसी तरह है कि आज आपके बच्चों के लिए जरूर शायद नीड बेस्ड कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 दिन में आ सकता है, 1 महीने में आ सकता है। लेकिन हम ऑलवेज माइंडसेट में रहते हैं, अरे नहीं नहीं मैंने देख लिया था 2 महीने पहले, कुछ नहीं था उस पे। हम ये नहीं सोचते शायद अभी आया होगा। एक हमारा चीजों को भी हमें भी, मुझे तो काफी चीजें ना मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली क्लियर करता हूँ ना। कभी कभी लगता है ना पेरेंट्स भी अपने माइंडसेट को फिक्स कर चुके हैं, इनके लिए कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता? आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं हो नहीं सकता है? ये शायद मुझे लगता है ये एक माइंडसेट पेरेंट्स ने ना इसको ना एंटीवायरस का रिफॉर्म करना चाहिए। आपने भी अपने अपने वायरस को डिलीट कर देना चाहिए माइंड से। हर 15 दिन में आप ना अपने को रिफ्रेश करते जाइए और एक बार जरूर कुछ चीजों को आगे बढ़िए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल में आपके हाथ में कुछ ना कुछ लगेगा, और डेफिनेटली लगेगा। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये चीजों का एक वेबसाइट है, आप ये जरूर इसको लिख के रखिएगा और ये जरूर आप जाइएगा। देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ, जितना आप सर्चिंग मोड में जाएंगे उतना आप अपने बच्चों को बेनिफिट देंगे, और जितना आप बोलेंगे कोई हमें यहाँ तक लाएगा, तो मुझे लगता है कि काफी चीजें आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी जमाना पूरे टेक्नोलॉजी का है। आपको जितना सर्चिंग और जितनी चीजें आप देख पाए समझ लेंगे, शायद उतने ही बच्चे को फायदे आप दे पाएंगे। नेक्स्ट। हाँ, ये नेशनल करियर सर्विस सेंटर्स है, इसका बहुत पहले एस्टेब्लिशमेंट था। ये मुंबई बेस है, लेकिन ये बच्चों के लेबर रिलेटेड जो इश्यूज है उसके लिए भी काम करता है। उसके अंदर भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। ये बहुत से 99% ऑफ लोगों को पता नहीं है इस तरह का। इसके अंदर भी हमारे स्पेशल बच्चों के लिए कुछ है, लेकिन ये काफी एक्टिव नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन ठीक है, ये एक अवेयरनेस के लिए कभी आपको जरूरत रहे तो मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, एक्सेसिबल इंडिया अभी पता है हर जगह चल रहा है। कैंपेनिंग भी बीच में आपने काफी 2 साल पहले सुगम्य भारत अभियान करके टीवी पे काफी ऐड चलती थी, और काफी पॉजिटिव साइंस में मैं इसको कह सकता हूँ। अभी आपको काफी जगह रैंप हो गए, हैंड्रिल्स हो गए, चेकर स्ट्राइक्स हो गई, कमोड हो गया, हर चीज दिखने लगी है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। काफी इवन घर भी काफी लोग इस तरह का प्रोविजन करके बना रहे हैं। ऐसे कुछ मॉडल्स भी लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो ये काफी एक परिवर्तन आ रहा है अभी। तो जहां पे भी आप रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो आप भी कहीं एज अ प्रोफेशनल काम करते हैं, तो आपने एक्सेसिबल के एंगल से भी देखना चाहिए। काफी जगह जाता हूँ, जो पेरेंट्स, जिन घर में पेरेंट्स बच्चे डिसेबल रहते हैं उनके घर में एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती, और हम बताते गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। कोई रोल मॉडल हम भी क्रिएट कर सकते हैं ना, ऐसे जरूरी थोड़ी है। हमारे घर में भी स्टेयर्स की जगह रैंप रख सकते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं, हम बताते खाली ऐसा होना चाहिए। और जो प्रोफेशनली, कुछ लोग आर्किटेक्चर है, कुछ लोग बीइंग सिविल वर्क काम करते हैं, उन्होंने भी इस तरह के मॉड्यूल अपने प्रोफेशन में क्रिएट करना चाहिए, या फिर इस तरह का क्रिएटिविटी रिसर्च एंगल से भी सोचना चाहिए, या कुछ उस लेवल पे जाके बात होनी चाहिए कि जिस तरह से कम्युनिटी के लिए हम एग्जांपल क्रिएट कर पाए बीइंग अ प्रोफेशनल। तो सुगम्य भारत अभियान के लिए भी कुछ सीपीडब्ल्यूडी की गाइडलाइन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, काफी अच्छी गाइडलाइन है, आप जरूर समझिएगा। और कहीं सपोर्ट होता है, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करती है, तो डेफिनेटली उन्होंने भी ये पढ़ के कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं क्या, वो भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट। हाँ, एक्सेसिबल इलेक्शन, तो शायद इसका मैं नोडल ऑफिसर था पूरे इलेक्शन में। लगभग 17,000 दिव्यांगों को हमने इसमें लाइनअप किया था। काफी देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का, मैं 30,000 लोगों को जब ट्रेनिंग दिया था जो पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे, मैं ऑलवेज बोलता था आप इसको ये मत समझिए कि आपने कुछ अलग किया। आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि हर बच्चों को विदाउट क्यू लाइन में ना लगते हुए इनको वोटिंग करने का अधिकार है। इसके लिए सेपरेट ऐप बनाया गया, इनको वोटिंग आईडी देना है, काफी चीजें है। ब्रेल, आपको मालूम है अपना ईवीएम मशीन का हर चीज का भी ब्रेल में भी उसके ऊपर पॉइंटेड है कि 1-2 नंबर कहाँ है, कौन सा है। देखो कितनी चीजें फैसिलिटी हो रही है, लेकिन हम बोलते हैं हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, इलेक्शन वोटिंग क्या करेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो बच्चा हमारा करेगा, शायद एक नॉर्मल बच्चों 100 नॉर्मल बच्चों के लिए एक ऑटिस्टिक बच्चा एग्जाम्पल बन सकता है कि हाँ मैं 18 साल का हो गया हूँ, मैंने पहला वोटिंग किया है, मेरे बच्चों का वोटिंग कार्ड है।
शायद ये आप अपने पेरेंट्स, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, आपके रिलेशन में अपने बच्चों का रोल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए तो कोई अलग काम करना नहीं है, हमें अपने बच्चों का वोटिंग आईडी क्रिएट करना है, वोटिंग के दिन जाना है, एक्सेसिबल इलेक्शन के एंगल से उसको जाके क्यू में भी लाइन में लगना है, डायरेक्टली उसको वोटिंग के अधिकार जाके वो विदाउट क्यू जाके डायरेक्ट वोटिंग कर सकता है, डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए तो। मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें राइट बेस भी करेंगे ना बच्चों को, तो शायद इससे भी मोटिवेशन मिलता है और आपके बच्चे की तरफ देखने का भी नजरिया बदल सकता है, इवन आपको भी लोग पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना शुरू करेंगे। नेक्स्ट। हाँ, आप अच्छा काम करें तो डेफिनेटली अवार्ड भी मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन इज इम्पोर्टेंट, ये हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो काफी चीजें हैं इसमें, आपको मालूम है अलग अलग तरीके के 10-15 अवार्ड्स है नेशनल लेवल के, जो डिसेबिलिटी अफेयरेंस हर साल 3 दिसंबर को देता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी के थ्रू, राष्ट्रपति के हाथ से मिलता है ये विज्ञान भवन में। काफी अच्छे लोग इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। ये साइड में जाके ना हमें अवार्ड नहीं मिलता इसलिए हमने नहीं देखना चाहिए, ये कहाँ का माइंडसेट है। मैं ये बोलता हूँ अवार्ड किसको मिला है ना, उसके बारे में केस स्टडी पढ़िए और उसको समझिए इसने क्या अलग किया है, शायद वो हम 10 साल में कर सकते हैं आने वाले, शायद उससे भी आपको मोटिवेशन मिले। इसमें एक 2-3 अवार्ड ऐसे हैं कि जो बेस्ट करियर ओरिएंटेड रिलेटेड अवार्ड है, बेस्ट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अवार्ड है डिसेबल बच्चों के लिए, 90% अवार्ड इन ओनली फॉर द डिसेबल चाइल्ड या डिसेबल पर्सन। तो आपने भी इस चीजों को समझना चाहिए और खाली ये नहीं कि किसको अवार्ड मिला है, उसकी केस स्टडी पढ़िए, उसने क्या स्ट्रगल किया, उससे कांटेक्ट कीजिए, उसको एक लेटर भेजिए। मैं हर बार मेरी खुद की एक हॉबी बोलो या मेरी आदत जो भी चीज रहेगी, जितने अवार्ड मिलते हैं उनको मैं लेटर लिखता हूँ। देखो उनको पता नहीं कौन अभिजीत राउत है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि उन्हें अच्छा काम किया तो मैं जरूर उनको एक उनका अप्रिसिएशन लेटर भेजूं, जो मेरे लेटर की कोई शायद उनके लिए वैल्यू नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। तो बीइंग एज इस तरह के कुछ लोग बच्चे इसमें अवार्ड लेते हैं, तो आपने भी उनका कंसर्न करना चाहिए, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म एंगल से अपन ने भी सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे भी इस तरह के अवार्ड के लिए अप्लीकेबल होंगे। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप 100 मीटर का डिस्टेंस पार करने का कॉम्पिटिशन करेंगे तो 10 मीटर पे तो रेस जीतेगी, तो एक इसके बारे में भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये कुछ फायदे हैं, कुछ चीजें हैं, मेरे को अभी टाइम कम है, फटाफट मैं करता हूँ। इनकम टैक्स वगैरह प्लीज नेक्स्ट, ये शायद आपके पास हो गए जो बेनिफिट वगैरह आपको शायद है। कुछ गवर्नमेंट के सर्कुलर है पेंशन से रिलेटेड है, ये भी शायद आपको पता होगी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का पेंशन, सब चीजें इसके सर्कुलर है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के। नेक्स्ट। हाँ, कुछ चीजें आरबीआई सर्कुलर हैं जो बैंकिंग ओपनिंग में हमारे बच्चों के बारे में है, शायद ये आपके पास होगी और शायद ये आपको बेनिफिट दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकती है काफी चीजें। ये देखो ये चीजें ना मुझे किसी ने बताई नहीं, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं मुझे वो एरर पूछते तो दैट टाइम आई सर्चिंग कि यार इससे रिलेटेड क्या सर्कुलर, तो ये मुझे मिल जाते और सभी के काम में आते। नेक्स्ट। हाँ, अपना जो कुछ रूटीन एक्सरसाइज है, ट्रांसफर द, जो भी हमारे को कहाँ से कहाँ चाहिए, बहुत से पेरेंट पूछते हैं मेरे बच्चे को ऑटिस्टिक बच्चा है, रिहैब का यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है और मुझे XYZ ट्रांसफर करते हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के सर्कुलर है, आपको उसका भी बेनिफिट हो सकता है। जो एक कॉमन पैरामीटर है सर, पेरेंट्स को कुछ ना कुछ इसमें से लगना है। नेक्स्ट। हाँ, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का बीइंग एज महाराष्ट्र में हम काम करते तो कुछ अलग अलग ट्रांसफर रिलेटेड पॉलिसीज है, कुछ अलग अलग गवर्नमेंट के सर्कुलर, हर स्टेट का अलग अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर अलग अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के है जरूर नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट रिलेटेड पेंशन वगैरह, शायद आपको इसका कितने को कितना बेनिफिट होगा। संजय गांधी 1000 रुपए महीना मिलता है, मैं जरूर बोलता हूँ लेना चाहिए, 1000 रुपए से भी कहीं से नहीं आते, साल के 12,000 रुपए होते हैं, 10 साल का प्लान करेंगे शायद हम 1 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं। 1 लाख रुपए का वैल्यू 10 साल के बाद किसी की जरूरत भी बन सकता है, या हम हमारे बच्चों के एस्टेब्लिश रिलेटेड सपोर्ट भी ले सकते हैं चीजों का। नेक्स्ट। ये चीजें हैं जो शायद आपको पता नहीं, पेंशन अलग अलग स्कीम है जो एक स्ट्रक्चराइज मैंने बैठा के दी है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट प्लीज। पर्सनल लोन स्कीम्स हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी, नेशनल गवर्नमेंट की, जैसे मैंने बताया NHFDC, उसी तरह गवर्नमेंट महाराष्ट्र में अपंग वित्त उसको महामंडल रहता है, हर गवर्नमेंट स्टेट में रहता है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, एक्शन प्लान पॉलिसीज है, हर गवर्नमेंट अपना अपना एक एक्शन प्लान बनाती है 10 साल 15 साल के लिए, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पॉलिसीज बोलती है। जैसे डिसेबिलिटी एक्ट आ गया वैसे डिसेबिलिटी पॉलिसीज होती है अलग अलग, जो पॉलिसीज के बेस पे हम GR बनाते हैं, GR के बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है, नोटिफिकेशन पार्ट अलग, पॉलिसीज पार्ट अलग, GR इज डिफरेंट और इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट। हम ये चीजों को स्ट्रक्चराइज समझेंगे तो शायद इसका फायदा बहुत जनों को हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज।
हाँ, आरटीए रिलेटेड काफी चीजें हैं, काफी लोगों को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें बच्चों को आरटी में क्यों डालना चाहिए, उसमें तो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। आपकी माहिती के लिए आरटी ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर डिसेबल बच्चों को कोई भी इनकम का लायबिलिटीज नहीं रखा गया, ओनली फॉर द बच्चों के पास सर्टिफिकेट चाहिए, बच्चा स्पेशल नीड चाहिए, उसको आप सीबीएसई या कोई भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट एनी अदर। आपको कोई पैसा देना है, लेकिन उसको बीइंग आपको आरटी के थ्रू एडमिशन लेना है। फर्स्ट टू 8th स्टैंडर्ड तक के गवर्नमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है, एनी प्राइवेट स्कूल जो गवर्नमेंट एफिलेटेड है। लेकिन हम सोचते हैं गरीबों का है आरटी, ये तो चैरिटी वाला, यानी कुछ बैकवर्ड लोगों के लिए पॉलिसी है। नहीं, आरटी के अंदर स्पेशल बच्चों के लिए कोई विजिट ये रखा नहीं गया है, ओनली फॉर द वो बच्चा स्पेशल नीड चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। स्कॉलरशिप फैसिलिटी वगैरह है, या आप थोड़ा धीरे 1st to 12th तक के क्या क्या बच्चों को फैसिलिटीज है एजुकेशन रिलेटेड, जो स्कूल में जाने का सब्जेक्ट रिलेटेड है, रीडर राइटर एंड सपोर्ट सर्विसेज है। नेक्स्ट प्लीज। मैडम टाइम है मेरे पास, प्लीज। Sir, you can take 5 more minutes if you want. Okay, please. Thank you. And then we will just summarize. Okay. I think parents has a lot of queries, but let's see. Okay, चलो ठीक है। राइटर एंड स्टूडेंट फॉर रिलेटेड ऑटिज्म बच्चों के कुछ सर्कुलर जो गवर्नमेंट ने निकाले। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये एग्जामिनेशन में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जो हमें बच्चों को एग्जाम करना है, बच्चों को देना है, तो उससे रिलेटेड क्या सर्कुलर होना चाहिए। कभी कभी बोर्ड को भी पता नहीं रहता है हमारे बच्चों के क्या राइट्स है, हमें ये चीजें सर्कुलर का एक बुक बनाना चाहिए और रखना चाहिए कि गवर्नमेंट की अपडेटेड चीजें आई तो उनको देना चाहिए। जरूरी है गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, प्लीज। हाँ, बस रिलेटेड है, इसका बहुत सा फायदा नहीं, प्लीज। नेक्स्ट। हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए जरूर सोचिएगा, इसको पढ़िएगा। अभी आपके बच्चे समझ लीजिए 10वीं हो गए, 12th हो गए, और आपको इंजीनियरिंग में, मेडिकल या हर चीज में एडमिशन लेना है गवर्नमेंट के कॉलेजेस में। आपके लिए 5% ऑफ रिजर्वेशन सीट्स रखी गई है, उसके अंदर 1% रिजर्वेशन हमारे बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए है। लेकिन बच्चों को 12 के बाद आप कोई भी हायर एजुकेशन के लिए प्लान करेंगे, आप जरूर इसका फायदा लीजिएगा और अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं जो गवर्नमेंट एफिलेटेड है। एम्स से लेके जितने भी एनआईटी कॉलेज जितने अभी पता है हमें, वो भी है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, स्टेट रिजर्वेशन फंड होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक 5% ऑफ रिजर्वेशन फंड होता है। आपको मालूम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 1600 करोड़ का फंड है जो अनयूटिलाइज है, और अभी तक के कोई भी चीज उसके ऊपर खर्चा नहीं हुई। आप हर स्टेट का इस तरह से पैसा निकाल लीजिए, शायद 10,000 करोड़ हो जाएगा पूरे देश में। लेकिन ये पैसा कहाँ खर्चा होगा ना, ये पता नहीं है। उनको करने की इच्छा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, क्या करना ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कुछ चीजें हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन बीइंग अ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आपने ऑलवेज, कोई बता रहा है इसलिए कुछ चीजें नहीं करना चाहिए, हम भी पॉलिसी मेकिंग में आना चाहिए। और डेफिनेटली कुछ अच्छी क्रिएटिविटी आइडिया है एज पर द डिमांड या नीड ऑफ द मार्केट, तो हमने नीड असाइनमेंट करके कुछ पेपर डिजाइन करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट को सपोर्ट होगा ये फाइनेंशियली इस चीज को खर्चा करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। एजुकेशन रिलेटेड है, जो शायद मैंने आपको पहले बताया, अर्ली इंटरवेंशन की पार्ट है जो अभी गवर्नमेंट चला रही है, और शायद इसमें भी मैंने बताया कि बीइंग ऑर्गेनाइजेशन भी आप अर्ली इंटरवेंशन या डे केयर सेंटर शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये अभी आपने पेंडेमिक में इस चीजों का हमें काफी प्राउड है। गवर्नमेंट ने आईसीएमआर, आपको सबको पता है अभी क्या काम कर रही है, पूरे देश में पेंडेमिक में काम कर रही है। ये चीज के लिए हमने ट्विटर पे गवर्नमेंट से काफी फाइट किया लास्ट ईयर में, और सेपरेटली 72 पेजेस का गाइडलाइन पूरे देश के लिए पेंडेमिक में डिसेबल लोगों को किस तरह ट्रीटमेंट करना है, उसके साथ क्या डीलिंग होना चाहिए, कोविड वार्ड में किस तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके लिए गाइडलाइन भी बना के रखी है। तो डेफिनेटली ये चीजों का शायद हमें, हमारे बच्चे कभी ऑटिस्टिक बच्चे टचवुड कहीं भी होना नहीं चाहिए, लेकिन सरकमस्टेंसेस है, बच्चे पॉजिटिव आते हैं तो हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत रहे तो जरूर ये गाइडलाइन का बेनिफिट लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आखिर का आप बताएंगे प्लीज। Sir, amazing, amazing, amazing. And it was so much empowering for the parents. I can say that. Honestly, I'm a psychologist working in this field more than 8 years, but even I was not aware about so many provisions, so many facilities.
are there for children with special needs. So I am very much sure it must be very insightful and very empowering for all the parents. You discussed almost all the angles, different acts, different policies, different provisions, how government is being helpful for all of us, and why we should go for disability related certifications, and how we can take advantage of different things for our children. And you guided so well. It was so overwhelming, I could say that. Quickly, I would like to take few questions. Are there any online courses for RCI certification if we need to start a vocational training center? Is an RCI certified person required for a vocational center setup? This is a question from one of our parents. हाँ, डेफिनेटली आरसीए के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं, जिसको डीवीआर बोला गया था पहले, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बोला, लेकिन वो करंटली प्रॉपरली इंटरेस्ट यानी जितना वॉल्यूम चाहिए था नहीं हुआ, सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं हुआ। लेकिन आप उसी को, जरूरी नहीं कि वो सर्टिफाइड ही व्यक्ति चाहिए। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि आप ना सेग्रीगेट मत कीजिए बच्चों को या सेंटर को, हमारे बच्चों के लिए अलग चाहिए। आप फॉर एग्जांपल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, यू कैन पार्टिसिपेट इन। कोई एक आधा डीटीपी सेंटर चल रहा है, एमएससीआईटी कोर्स चल रहा है, तो 10 बच्चों में हमारे बच्चों को ऐड कर दीजिए, पता नहीं चलेगा। सेपरेट सेंटर इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि ना इसके लिए लाइबिलिटीज, फाइनेंशियली हर चीज अलग अलग लगेगी, और उसके लिए एक्सपर्ट फिर अलग लगेंगे। फिर एक्सपर्ट नहीं होने की वजह से सेटअप कोलैप्स होता है, और फिर एक ही एक्सपर्ट 10 जगह घूमता है, तो शायद वो कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा है। एग्जिस्टिंग सेटअप में हमारे बच्चों को कैसा इंक्लूजन करेंगे, इसके बारे में ज्यादा सोचिए। Thank you, sir. There is one more important question. Who can form a local level committee? I'm a single parent, mother of 19 years old autistic child, and require a legal guardian certificate. Can I make a LLC myself? हाँ, डेफिनेटली आप 10 पेरेंट्स एक साथ आइए। आप पहले तो एक अपना ग्रुप फॉर्म कीजिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखिए कि बीइंग एज अ पेरेंट्स एसोसिएशन हमने एक पेरेंट्स, जैसे आपने स्ट्रिक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया, मैं तो चाहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और इस तरह से हमने प्लानिंग करना चाहिए। और उन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाके हमें बोलना चाहिए बीइंग अ नेशनल ट्रस्ट हमें एलएलसी फॉर्म करना है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज अ मैजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट, वो करेस्पॉन्डेंट करेंगे नेशनल ट्रस्ट को, और नेशनल ट्रस्ट ऑलवेज वेलकम दिस, लाइक कि हमें इस तरह के पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से काम होगा। हाँ, इनिशियल लेवल पे 10 पेरेंट्स को शायद एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए 10 महीने लग सकते हैं, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग 10 साल के लिए एस्टेब्लिशमेंट है, 10 साल क्या 50 साल के लिए एस्टेब्लिशमेंट है। तो शायद डेफिनेटली किसी ने इनिशिएटिव लेना चाहिए, और वो उसका लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन है। Thank you so much, sir, for so many insights and so many, information. Now here, many parents wants to get connected to you. To those parents, I would give them suggestion. Please get in touch with our organizer. She will guide you to get, connected to Mr. Abhijit Raut. Thank you so much, sir. Now I would like to hand over to Dr. Sumit Shinde. Just 1 minute. Yeah. प्लीज जितने पेरेंट्स के सवाल हैं मुझे प्लीज शेयर कीजिएगा, मुझे दिख रहे हैं, डेफिनेटली मैं सबका इंडिविजुअल आंसर दूंगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, डेफिनेटली दूंगा। Yes, thank you. Yeah. So to all the parents, तीन चीजें होती है, कुछ चीजें हमें पता होती हैं, कुछ चीजें हमें नहीं पता होती है, ओके। लेकिन तीसरी एक ऐसी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, वही हमें पता नहीं होती है। We don't know that we don't know what we're supposed to know. So I feel all the parents should take a lead. This was an amazing and enlightening session for every parent. It is like वो आपके टेबल पर होना चाहिए हर वक्त की these guidelines, and rightly said by Mr. Raut कि ये जो policies हैं ये upgrade होती हैं, और ये policies upgrade होने के लिए भी we have to do the knock. if we say disability is 2%, that means minimum 2 crore people, लेकिन knock करने वाले होते हैं शायद 10,000, and then definitely if there is a minority, it will definitely will take some time to get the answer for that knock. So all the parents kindly note this, and also there are some opportunities for the vocation, opportunities for your own vocation. Okay, right. And this is something, a great thing to get integrated into the society. Mr. Raut, you are amazing. You are amazing speaker. Okay. See this PPT. If we gave it to this PPT to someone and ask them to, you just go through it,
they will understand nothing. In fact, me also. But the way you explained every aspect, that is an amazing way of reaching out to the people. Thank you, sir. Thanks for your guidance, and amazing. We will seek your guidance in the future also. And my request to SNCC and other parenting organizations to make this information available for every parent who comes to them. So this is something, if we can make a PDF of it, and then we can guide this. And also we are going to keep this lecture available for all the parents. It's like a Bible. It's like a Bible. Anybody, I'm going to listen to this again and again, and then we can create more and more opportunities from current challenges. Thanks a lot, Mr. Rao. Thank you, SNCC, for bringing this lecture. Thank you. And Thank you, Dr. sir. Sumit, our one of the parents, Mr. Roderick, said correctly, this is not for only listening, this is for implementation. So I would request all the parents to implement this, because this is really, really very important for all your children. Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Arshali madam, give the opportunity, and thanks to listening for the all parents. और आपके बच्चे मेरे बच्चे की तरह हैं. Definitely, I am working in this sector. I am emotionally attached with all parents. So thank you, give me an opportunity also. Thank you. Thank you a Sir, lot. I know that Abhijit Rao sir is always ready to help in any aspect to all the parents. Actually, that's I as far as I now since 2-3 years I know him. So he is a wonderful person. Even I mean, he is willing and very passionate to help all our special need kids parents. Thank you so much, sir, for being here. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Bye. Mr. Abhijit, for your Bye, sir. guidance and information for our parents. I'll definitely request the organizers to make the information available very easily for all our parents, because this is something which they need to take advantage of. Thank you, sir. Thank you. Have a good day, sir. Yeah.